Hello friends, welcome to an academy UGC NET. This is Simran Nagra, your economics educator. आपको अन अकेडमी ऐप देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको हर वेनसडे को आपको प्रोमिनेंट लेक्चर्स देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट्स वी आर प्रोवाइडिंग फॉर दी यूजीसी नेट. I have done my economic honors from Jaipur, did my masters from Mumbai. Just after the completion of my masters, I have started working in various colleges for various streams. Having experience of 3 to 4 years, and I have also worked in stock market that could enhance your practical approach towards the same subject. पेपर 1 के साथ बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स अपन को देखने को मिलेंगे. यू कैन शेयर द सेम इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स रिलेटेड टू द अदर सब्जेक्ट्स. अगर आपको सब्सक्रिप्शन की बात करनी है तो सब्सक्रिप्शन में आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है यूट्यूब पे क्लासेस का और स्पेशल क्लासेस का ओवर दी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. गाइस, इफ यू हैव नॉट इंस्टॉल दी ऐप अन अकेडमी ऐप, प्लीज डू सो. प्लस कोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो लाइव क्लासेस के साथ, क्विज सेशंस के साथ आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देखने को मिलता है. ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड में आपको सारी अमेनिटीज अवेलेबल होती है, तो दैट इज गोइंग टू कंजर्व योर टाइम एज वेल. अनलिमिटेड एक्सेस देखने को मिलता है बहुत सारी सर्विसेज का और प्रॉपर माहौल देखने को मिलता है. प्लस क्लासेस में यू कैन गेट अ काइंड ऑफ क्लू ओवर दी स्पेशल क्लासेस एज वेल. आपको आइकॉनिक की अगर अपन बात करते हैं तो पर्सनलाइज असिस्टेंस में देखने को मिलेगी. टेस्ट एनालिसिस किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से स्टडी प्लान की जाएगी कि इन व्हाट पाथवे यू हैव टू फॉलो दी प्रिपरेशन फॉर दी एग्जामिनेशन. प्लस और आइकॉनिक की अगर अपन बात करते हैं तो आपको इंटरैक्टिव क्लासेस के अलावा बेस्ट एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे एंड स्ट्रक्चर्ड आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे. पर्सनलाइज कोच, डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड मटेरियल्स वुड बी अवेलेबल. Again, the live classes, test series, unlimited practice papers, structured schedule would be there. Iconic की बात करते हैं तो everywhere like every amenities would be provided on personalized basis. Beyond that, you would be reviewed on the basis of test you have given. Hurry up guys, subscription charges बढ़ने वाले हैं तो you can use the code in order to take the advantage of 10% discount beyond the for the plus subscription. Iconic की बात करते हैं, again you can use the code in order to take the access for the Iconic. आपको पता ही है कि personalized basis पे आपको सारी mentorship, आपको booster session, study planning की जाएगी. If you are getting any kind of inappropriate content, you can make claim over it in order to win the prizes. And मैंने सिमरनजीत मैम ने एंड सावेरी मैम ने मिलकर क्रैश कोर्स का स्टार्ट कर दिया है 1 सितंबर से. You can take the advantage out of it. Guys, this is so important to give the ad regarding these kind of information ताकि आपको अवेयरनेस फैले कि किस किस तरीके की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है. If we are talking about the crash course, आपको यूनिट वाइज सारा सिस्टमेटिक तरीके से क्रैश कोर्स देखने को मिलेगा. You can still take the advantage out of it. ये हमारी यूजीसी नेट की टीम है. अगेन आई एम सेइंग ये इंफॉर्मेशन देना इज वेरी मस्ट बिकॉज यू विल गेट टू नो अबाउट द क्रैश कोर्सेज हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द अलग अलग सब्जेक्ट्स. For the paper 1 and the English and education, economics we are talking about. Special classes की अगर अपन बात करते हैं, we are adding the special features in the special classes so that classes can be made so interactive in nature. Raise a hand facilities would be there and you will not miss a single lecture because you are going to get the notification for the upcoming lectures and the lecture notes would be provided. Anywhere, anytime you do have access for the problems and the special classes. फिर अपन बात करते हैं PYQ series. I have already end up the 18 lecture of the PYQ. You can have access regarding those special classes. और मेरा special classes का time रहता है 4 PM. You can have access to those special classes. Macro economics की अगर मैं बात करती हूँ, maths के 1-2 lecture, econometrics and the international parts, the important parts has been covered in these 3 subjects and macroeconomics का entire syllabus has been covered in the special classes. Again you can take the benefit out of it. Guys, आपको हाइक अलर्ट मिल रहा है कि 3 months और 1 month के लिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लीज हरी अप. इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल एट द चीपर रेट. आगे जाकर ये हाइक होने वाला है तो प्लीज डू टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट. और नागरा 10 यूज करना बिल्कुल ना भूले एज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड दी 10% डिस्काउंट टू यू.
अगेन वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर विद द क्रिएशन कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट, या अपन जिस तरीके से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला सीक्रेट जो आपको देखने को मिलेगा कि आप स्टार्ट तो करो, आपको स्टार्ट करना है और रुकना नहीं है. इट हैज टू बी कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, और वो कंटिन्यूएशन पे चीजें कब रहती है, जब आप स्टीव जॉब्स के इस कोट को याद रखोगे, द वे वॉट एवर थिंग्स यू आर डूइंग यू आर फीलिंग दैट थिंग्स आर इंजॉयबल फॉर यू. आपने अगर इकोनॉमिक्स को चूज किया है, मैंने अगर इकोनॉमिक्स को चूज किया है, साइकोलॉजी को चूज किया है, एजुकेशन को चूज किया है, व्हाटसोएवर इज माय सब्जेक्ट बी, द मेन मुद्दा ऑफ दिस पॉइंट हियर इज कि मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, क्या मुझे इसमें मजे आ रहे हैं क्या. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू मेक द एंजॉयमेंट वॉट एवर थिंग्स यू आर गोइंग फॉर. किसी भी चीज के लिए आप प्रोसीड कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रोसीड कर रहे हैं, इट नीड्स टू बी मेक श्योर कि भाई आपको मजा आ रहा है उस चीज में. ठीक है, तभी वो चीज कंटिन्यूटी पे रहेगी, तभी वो चीज सस्टेनेबिलिटी पे रहेगी. सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहला जो कीज अपन को देखने को मिलता है टू क्रैक द एग्जामिनेशन. गाइस बिलीव मी, अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, वो कंसिस्टेंसी कब रहेगी, जब आपको उस चीज में मजा आएगा. जैसे लास्ट स्लाइड में अपन ने बात की, कंसिस्टेंसी कब रहेगी, व्हेन यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट. ठीक है, द फॉरमोस्ट रीजन कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, सस्टेनेबिलिटी रखनी है. जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको रोज उसका एक टाइम टेबल सेट करना है कि भाई इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मुझे मूव करना है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या आपको ट्रस्ट है अपने आप पे, आपकी एबिलिटी पे. यस, वी डू हैव ट्रस्ट. आपको अपने आप को पुश करना है, नोबडी एल्स इज गोइंग टू पुश यू फर्दर. ठीक है, आपको खुद अपने आप को मोटिवेशनल स्केल देने पड़ेंगे, बार बार एग्जामिन करके कि भाई मैंने आज 4 आवर्स की स्टडी करने का सोचा था और आपने की है 3 आवर्स की स्टडी. व्हाट टू डू नाउ, हाउ कैन आई प्रोसीड फर्दर. आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं सेल्फ पनिशमेंट दे सकता हूं अपने आप को. सो यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ. आपको अपनी एबिलिटीज पे विश्वास होना चाहिए कि क्या आप अपना टारगेट जो आपने सेट किया है, क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो. पर डे की बात कर रही हूँ, अगर पर डे कंटिन्यूअसली पर डे आप काउंट डाउन करोगे तो इट कैन मेक योर परफेक्ट टारगेट. ठीक है, तो आपको अपने आप पे विश्वास होना इज वेरी मस्ट. ऑथेंटिक सोर्सेज का मतलब क्या है कि इट इज नॉट अबाउट कि आप बहुत सारी बंडल्स ऑफ बुक्स पे आप फोकस कर रहे हो. जस्ट फोकस ऑन वन एलिमेंट रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट. अगर आपका वो पार्ट फ्री है, अगर आपका वो पार्ट एकदम क्लियर है, दैट इज बिल्डिंग योर ट्रस्ट, दैट इज बिल्डिंग योर कमांड ऑन दैट सब्जेक्ट, देन इट वुड बी ऑथेंटिक सोर्स फॉर यू. ऑथेंटिसिटी से मेरा मतलब ये नहीं है एक पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो करना है. इट इज जस्ट वट एवर एलिमेंट, जिस भी बुक को आपने उठाया है, उस बुक पे उस बुक से आपने कुछ भी किया है ना, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ, माई टॉपिक इज क्लियर नाउ. यू नीड टू हैव द कमांड ओवर द बुक whatever you have completed. ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे. शॉर्ट नोट्स आप किस तरीके से यूज करोगे, जस्ट लाइक अ कीज टू स्टडी इन द एंड टाइम. बिलीव मी गाइस, 3 बंडल्स में आप नोट्स बना सकते हो. फर्स्ट आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपको एक अंडरलाइन सोर्स करके चलना है. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग आप दोगे तो अंडरलाइन करना है. इफ यू डू हैव टाइम इन एक्सेस तो आपको अंडरलाइन सोर्सेस के थ्रू काम करना है. सेकेंड पॉइंट इज आप नोट्स बनाओगे अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स बनाना है. नेक्स्ट अपन काम करेंगे, थर्ड पॉइंट अपना आता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. शॉर्ट नोट्स मतलब इट शुड बी ट्रीटेड एज कीज. समझ में आ रही है बात. तो अंडरलाइन फर्स्ट फॉर्म आपने बुक में अंडरलाइन किया है सिर्फ समझने के लिए. नोट्स बनाए हैं अंडरस्टैंडिंग, उसको रिकॉल करने के लिए. थर्ड आपने बनाया है शॉर्ट कीज. ठीक है, तो वो शॉर्ट कीज आप एंड ऑफ द एग्जाम यू कैन टेक द यूटिलाइजेशन ऑफ दो स्टफ. ठीक है, आपको शॉर्ट में आपने कोई भी चीज की है, इफ यू आर जस्ट ग्रैबिंग द whatever sources you are reading for, आप जो भी चीज कर रहे हो और शॉर्ट स्पेन में कर रहे हो, that is not going to be sustainable. I do not believe in the shortcuts. तो पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, I have taken a lot analysis कि किस तरीके से अपन डील कर सकते हैं. ये लेक्चर बनाने से पहले बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को एनालिसिस किया गया है कि उनका बोलना क्या है,
कि आपने अंडरलाइन किया है, फिर बड़े नोट्स बनाए, छोटे छोटे कीज बनाई गई, उन कीज के अकॉर्डिंग थिंग्स हैज बीन सॉर्टेड कि हाँ भाई वो अपन लास्ट टाइम में यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अपना टाइम कंज्यूमिंग ना हो। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की अगर अपन बात करें, ये अपने लिए क्यों जरूरी है? प्रैक्टिस पेपर आप करोगे कि भाई हाँ 80 आए हैं 100 में से, 20 मार्क्स गए कहां पे? दिस इज योर चेक्स एंड बैलेंस अप्रोच। यू विल गेट टू नो द एनालिसिस कि कहां आपकी गलती हो रही है, कहां आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। गेटिंग माई पॉइंट? अब अपन आते हैं डिसाइड योर कैटेगरी। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द जेआरएफ, अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पे। जेआरएफ की अगर अपन बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि आपकी कैटेगरी डिसाइड करोगे। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, आप सेम कैटेगरी के नहीं होते हो। आप परस्यूइंग अटेम्प्ट में हो, मास्टर्स के बाद की बात कर रहे हो, पीएचडी स्कॉलर हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा देयर इज अ काइंड ऑफ लैग्स बिटवीन दीज थिंग्स। आपको बहुत सारे लैग्स देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको खुद को अपनी रोड डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला 4 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, 3 घंटे की है, यू जस्ट हैव टू गिव पनिशमेंट टू योरसेल्फ, सेल्फ पनिशमेंट देनी पड़ेगी। कैसे कि भाई नेक्स्ट डे मुझे 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे एनी हाउ करके। अगर मैं 4 घंटे पढ़ लेता तो क्या हो जाता, 4 घंटे ही पढ़ना पड़ता। नाउ आई हैव मेड द एडिशन ऑफ +1, +1 का आपने एडिशन कर दिया, ये सेल्फ पनिशमेंट हो गई। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहीं पे आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके से खुद को पनिशमेंट दोगे तो अपनी खुद की रोड डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। और आपका मेन मोटो क्या रहता है कि किसी भी सब्जेक्ट को उठाया है तो उसको अच्छे से पॉलिश करना है। यू हैव टू ग्रैब योर सब्जेक्ट थॉरली, अच्छे से पढ़ना है उसको। अब देखो, मैंने ये चीज स्टार्टिंग में भी बोली थी, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू दैट। कोई दूसरा आपको आकर पुश नहीं करने वाला है। यू हैव टू योरसेल्फ पुश योरसेल्फ। अपने आप को आपको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। अपन लेआउट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं जेआरएफ के लिए, किस तरीके से अपन लेआउट तैयार किया जा सकता है? स्पेंड करो क्वालिटी टाइम टू पॉलिश द कंसेप्ट्स। 3 to 4 आवर्स दे दो। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो यू कैन गिव दैट 3 to 4 आवर्स अ डे। अगर 3 to 4 आवर्स स्पेंड कर रहे हो, क्वालिटी टाइम दे पा रहे हो, प्रोडक्टिव टाइम दे पा रहे हो किसी भी कंसेप्ट के लिए, कि अपने सब्जेक्ट के लिए, तो दिस वुड बी हेल्पफुल। अब देखो, इसी टाइम में आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। आप खुद अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करो? सपोज आपने अनअकैडमी पे कोई लेक्चर देखा, ट्राई टू नोट इट डाउन, क्योंकि नोट इट डाउन खुद कर रहे हो ना, तो इट इज गोइंग टू हैव द रिटेंशन पावर, ज्यादा रिटेन कर पाओगे आप, ठीक है। प्योरली डिपेंडेंट अगर दूसरों के नोट्स पे रहते हो तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर द लॉन्गर पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज मच एज यू कैन डू इट, क्योंकि दिस इज ओनली द वन विच इज गोइंग टू स्टैब्लिश द चेक एंड बैलेंसेस फॉर एनालिसिस। आपको पता लगेगा कि भाई ये 4 क्वेश्चन इस टॉपिक में से मेरे गलत हुए हैं, तो आई हैव टू वर्क ऑन दिस टॉपिक। मुझे आता तो है ये पूरा का पूरा टॉपिक। कई बार अपन क्या सोचते हैं, अपन एनालाइज करते हैं, वी नो अबाउट द टॉपिक, क्यों गलती हो रही है क्वेश्चंस में से, मतलब समवेयर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आपको कुछ ना कुछ गलत दिख रहा है, तो आपको रिवीजन की जरूरत है। और हमेशा याद रखना, रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस, ठीक है। आपको रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। पेपर 1 की अगर अपन बात करते हैं, पेपर 1 भी आपको 50 क्वेश्चंस आपको लीड करके देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टू नो वेयर टू वर्क मोर। आपको चेक और बैलेंसेस लगाएंगे तो आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा, ठीक है। वीकनेस का पता चलेगा तो इससे क्या हो जाएगा, आप एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। यू कैन वर्क ऑन दोज एस्पेक्ट्स, आप उन वीकनेस पे काम कर पाओगे। पेपर 1 के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंस दिस थिंग इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू, तो यही आपके मार्क्स का क्या करने वाली है, रैंकिंग निकालने वाली है। गाइज प्लीज डू वर्क हार्ड ऑन दिस पेपर एज वेल, लेकिन बर्डन नहीं लेना है। बर्डन के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी लूज हो जाती है, ठीक है। आप ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे टेंशन के साथ, तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ श्योर कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, चीजों को लाइटली रखा जाए। किस तरीके से लाइटली रख सकते हैं? रेगुलर आप आधे घंटे से 1 घंटा आप दे सकते हैं, किसको? पेपर 1 को। एटलीस्ट हाफ एन आवर तो देना ही है, ठीक है। दैट इज मेकिंग द फुल ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। और हमेशा याद रखना, ये सब्सटेंशियल स्टडी करनी है हर एक यूनिट की, ताकि सेम रेगुलरली अगर आप करोगे तो लास्ट में आकर आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा वो। पॉइंट नंबर 3,
यहाँ पे आप बात करते हो बिफोर 10 to 15 डेज प्रिफरेबली, ठीक है, 10 to 15 डेज मतलब लास्ट एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जैसे कि अभी जिस टाइम मैं आपको ये लेक्चर प्रिपरेशन के बारे में बता रही हूँ उसी टाइम 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। तो अगर आप अपना बेस्ट देते हैं पेपर 1 को तो दैट कैन स्टैब्लिश आवर रैंकिंग, ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ। तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस, आपको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो साइलेंस उड़ा के रख देगा आपका सक्सेस। हमेशा याद रखना, यू नीड नॉट टू स्पीक अबाउट इट, आपका जो सक्सेस है वो अपने आप इस साइलेंस को उड़ा के रख देगा। साइलेंस अपन बात करते हैं सिलेबस डिस्कशन। यहाँ पे मैंने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को रेफर नहीं किया है। क्यों नहीं रेफर किया है? क्योंकि सब्जेक्ट डिस्कशन से पहले आपने सबसे पहले तो ये नोट करो, सबसे पहले आपको ये एनालिसिस करना है कि आपने जो मास्टर्स में कोर्स कवर किया है वो कितना परसेंट है किसका, ऑफ एनटीए यूजीसी नेट का, ठीक है, आपका एनटीए यूजीसी नेट का कितना परसेंट कवर हो रहा है, उसको करो आप रिवाइज और नोटिस करने की कोशिश करो कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। स्ट्रेंथ को और ज्यादा पक्का कोशिश करो, ठीक है, और ज्यादा पक्का करने की कोशिश करो क्योंकि यही वो पोर्शन है जो आपको फुल प्रोडक्टिविटी के साथ आपको मार्क्स गेन करके देगा। देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द वीकनेस। अब इसको पक्का करने के बारे में सोचो। मैं स्ट्रेंथ के बारे में बार बार बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यही आपको खुद को सेल्फ मोटिवेशन देना पड़ेगा ना। अगर आपको रिवाइज करके पता चलता है कि हाँ ये टॉपिक मुझे आता है तो मतलब कुछ तो आता है वाली फीलिंग आपके मन में आएगी, आप उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। फिर उसकी वीकनेस की अगर अपन बात करें, अब अगर मैं नॉट कवर की बात कर रही हूँ वो उस टाइम की बात हो रही है जब आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा पढ़ने के लिए। प्लीज डू नॉट गो फॉर द वीकनेसेस एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जस्ट लीव इट, ठीक है, जितना हो रहा है देखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन सिलेबस डिस्कशन की बात करते हैं। आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये देखो कि आपका टारगेट क्या है, उससे 5 से 10% अबव आपको टारगेट रखना है। समझ में आ रही है बात? उससे 5 से 10%, सपोज 70% कट ऑफ निकलता है तो आप 80% रख के चले ताकि 75 के इर्द गिर्द आप पहुंच जाओ। फिर आप लेआउट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे अपन ने लास्ट स्लाइड्स में डील की है। डोंट गो फॉर द अनटच्ड मैटर इन द लास्ट आवर्स। प्लीज गाइज, ये मिस्टेक गलती से भी नहीं करनी है कि जो चीज आपको नहीं आती है और यू आर स्टडिंग दैट टॉपिक इन द लास्ट आवर्स, नो, वो आपकी प्रोडक्टिविटी कम करके रख देगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि यस्टरडे इज नॉट योर्स टू रिकवर। आपको सिर्फ एग्जाम देना है, टुमारो इज योर्स, ठीक है, टुमारो इज आवर्स टू विन और लूज भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। आपको क्रिटिकल एनालिसिस ही देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पे लैगिंग किया है और इस लैगिंग को मुझे सुधारना है, ठीक है। फेलियर से हमेशा सस्टेनेबिलिटी आती है। एक बार में आपको अगर सक्सेस मिल जाता है तो आपको ड्रॉबैक्स नहीं मिले ना, तो उससे आपको कुछ लर्निंग नहीं मिलेगी, बहुत ही लो रेंज रहती है इसकी, ठीक है। करंट अफेयर, जैसे मैं इकोनॉमिक्स, आई एम योर इकोनॉमिक एजुकेटर, इकोनॉमिक्स के एजुकेटर हूं, उस बिहाफ पे मैंने थोड़ा सा कीज बता दिया कि इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन इकोनॉमी, ये लास्ट बेसिस पे, लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये नए ट्रेंड्स होंगे फिर भी अपन को लास्ट में ही पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे पे एक ग्लैंस आ जाए, इंडियन इकोनॉमी पे अपना थोड़ा सा अपन देख लें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठाया गया है। करंट ट्रेंड्स की इन्फ्लेशन की बात कर लिया आपने, ठीक है, आपका टैक्सेशन का रेशियो देख लिया, रेवेन्यू देख लिया कितना कौन कंट्रीब्यूट करता है, फाइनेंस कमीशन में लेआउट देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट में कीज होती होगी। वैसे ही लास्ट मोमेंट के लिए कुछ टॉपिक रखिए जो आपके लास्ट मोमेंट पे काम आने वाले हैं। अब देखो लास्ट में आपको किस तरीके से जाना है। इन द लास्ट 2 मंथ्स की बात कर लो, अगर 15 दिन बचे हैं तो यू जस्ट हैव टू गो बाय द मैराथन्स। आपको बहुत सारे ऑनलाइन मैराथन्स देखने को मिलेंगे, यू कैन जस्ट गो बाय दैट। आप सिलेबस की बात कर सकते हैं, जो भी क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है 1 सितंबर को, यू कैन टेक एडवांटेज क्योंकि आपको वो चीज ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में दी गई है विद द लिमिटेशन ऑफ द टाइम लेआउट। तो आप ऐसी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं क्विक गो थ्रू के लिए। आपको चीजें आती तो है लेकिन आपको रिवाइज करना है। कई बार ऐसा होता है मेरा पढ़ने का मन है लेकिन यार मूड नहीं हो रहा,
ठीक है, कई बार मूड नहीं होता है आपका पढ़ने का, उस टाइम पे क्या करो, यू कैन जस्ट क्लिक अ बटन फॉर द मैराथन, यू कैन जस्ट क्लिक अ बटन फॉर द लेक्चर्स यू वांट टू लिसन फॉर। ठीक है, तो आप सिर्फ विद द एक्सेस ऑफ दैट बटन आप क्या कर सकते हो, मैराथन आपके हाथ में होगा, रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी लूज नहीं होगी और आपका लर्निंग भी हो जाएगा इन द लास्ट आवर और आपका वेस्ट भी नहीं होगा टाइम। गेटिंग माई पॉइंट? हैव अ ग्लैंस टूवर्ड्स द कीवर्ड्स। अब मैंने कीवर्ड, जो मैंने की नोट्स की बात की थी कि भाई छोटे नोट्स बनाने की जरूरत है, वो लास्ट टाइम पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उन कीज को आप इम्फेसाइज कर सकते हो और आप फोकस एरिया में उन कीज को रख सकते हो ताकि आपको लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो क्विक गो थ्रू आपको करना है। थैंक यू सो मच गाइज, and please do not forget to use the code in order to unlock my video. Please do not forget to unlock the videos with the help of this key, this code नागरा 10। और ये नागरा 10 आपको प्लस कोर्स के लिए और आइकॉनिक के लिए 10% डिस्काउंट दिलाने वाला है। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक द एडवांटेज आउट ऑफ इट। If literally you have enjoyed the video, please do not forget to like, share and subscribe। And again, please, if you have not installed the अनअकैडमी ऐप, प्लीज डू सो। आपको प्रॉपर माहौल देखने को मिलता है अनअकैडमी ऐप में, स्पेशल क्लासेस के थ्रू। वेडनेसडे को फेस्टिवल रहता है और प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलता है, लेक्चर्स वहां पे डिलीवर किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।